नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ दिन पहले एक बहुत ही ज्यादा रूमर फैली कि डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं रहे। कुछ इस प्रकार का बहुत ज्यादा इस प्रकार के रूमर अचानक सोशल मीडिया पर फैलने लगा। तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज पे आकर सफाई दी कि नहीं, मैं अभी हूं। लेकिन जिस प्रकार से रूमर फैल रहे थे उस प्रकार से बंदा को एक्चुअली इतना अब ये होने लगा है कि खुद आके बताने पड़ रहा है कि नहीं मैं हूं। लेकिन इस पे भी खुद जब लोग आ गए, अब सामने आ चुके हैं, लेकिन बंदा इतना झूठ बोला कि लोग अब सोच रहे हैं कि इस पे विश्वास भी करूं या नहीं करूं। क्योंकि अभी तक के जो अगर सबसे बड़ा झूठे व्यक्ति के नाम पे कोई राष्ट्रपति के तौर पे अमेरिका जैसे देश में अगर आएगा तो हो सकता है कि यह सबसे ऊपर के लाइन या पंक्ति में खड़ा मिले। बंदा कुछ और ज्यादा किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने की जो रिकॉर्ड है वह पूरी तरीका से तोड़ दिया है। अब तो खुलेआम अमेरिका के लोग ने भी इस चीज को एकदम क्रिटिसाइज करने लगे हैं कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने आज के समय जो हरकत मुख्य रूप से भारत के साथ करना स्टार्ट कर दिए हैं, आगे आने वाले समय के अंदर लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा है कि हमें किस प्रकार से आगे भारत के साथ रिलेशन रखा जाए या भारत के साथ एक संबंध सुधारने के लिए कार्य किया जाए। आजकल खुद अमेरिका के जो वहां के मीडिया है, जैसे आप मान के चलिए कि फॉक्स जो है, फॉक्स टीवी या फॉक्स न्यूज चैनल, उस पे आप देखिएगा कि वह सबसे ज्यादा सपोर्टर है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन वहां से भी अब क्वेश्चन उठने लगे हैं कि जो इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है भारत के साथ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, जब वीडियो की शुरुआत हुई होगी, आप सभी लोगों को याद होगा कि जब कोई भी चैनल इस प्रकार के जियोपॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो एक अकेला चैनल हमारा ही था, यही चैनल था कि जिसपे हमने पहले ही बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप देश के लिए नहीं, पहले खुद के लिए जी रहे हैं। अब यह बात खुलेआम वहां के अमेरिका के जो पूर्व एनएसए जैक सुलेवन हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीका से फॉक्स Donald Trump said that the first deal that he was going to make was with India. I'm best friends with Modi. And then he just started taking credit for resolving the India-Pakistan war, which is a very big, sensitive topic for India, saying you did not do that. Stop taking credit. He does that every day, and that, like, hurts everything there, and it like crushes them. That's not true. Donald Trump took, like, his family took Bitcoin from the Pakistani Bitcoin sovereign fund, and they brought in the general from the Pakistan to be there. And India's like, what the hell are you doing? And then meanwhile, you still have Apple building new factories because Tim Cook came in with a gold bar, and he's building the factories in India. What do you make of what's happening there? I think this is one of the more underreported stories in Trump's foreign policy, and I'm really glad that you raised it. On a bipartisan basis, going back decades, the United States has worked to build its relationship with India, the world's largest democracy, a country that we should be aligned with on technology and talent and economics and so many other issues, and aligned with in dealing with this strategic threat from China. And we had come a long way on that. And now, in no small part, I think, because of Pakistan's willingness to do business deals with the Trump family, Trump has thrown the India relationship over the side. That is a huge strategic harm in its own right, because a strong US-India relationship serves our interests. But imagine every other country in the world. You're Germany, you're Japan, you're Canada. You look at that and you say that could be us tomorrow. And that only reinforces your view that you got to hedge against the United States. And having all of our friends and countries around the world decide they just can't rely on the US in any way, shape, or form, that is not to any interest of the American people long term. Our word should be our bond. We should be good for what we say. Our friends should be able to rely on us. And that has always been our strength. And what's happening with India right now has huge direct impacts, but it also has this reverberating impact across all of our relationships and partnerships. टीवी के ऊपर आकर इंटरव्यू में बता दिया, आप वीडियो देख। उसके बाद आगे जब आए तो आप खुद देखिए कि जैक सुलेवन के बाद उन लोगों ने बताया कि ये बातें अब स्पष्ट तरीका से क्यों होने लगी है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौर में थे, इलेक्शन के टाइम में आने वाले थे, तो उसी समय भारत के से उन्होंने भारत के बारे में बहुत अच्छे बात किया करते थे, मोदी हमारा दोस्त है और ये वो। लेकिन जैसे ही बंदा एक बार वहां के राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद वह सबसे पहले अब वह अपना फैमिली को देखना प्रारंभ कर दिया है। एक्चुअली में आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका के पास अभी तक जो भी आपने देखना स्टार्ट किए होंगे, तो उनके जो बेटे हैं जूनियर डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के लोग मात्र 3 महीना के अंदर $5 बिलियन इनके परिवार के पास आ चुका है। अब वहां के जितने भी लोग हैं अमेरिका के, और यह जैसे ही न्यूज इंफॉर्मेशन बाहर निकली तो वह अमेरिका के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह
बंदूक तो रखकर चला रहे हैं अमेरिका वासियों के ऊपर कि हमने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम से हम इसको बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसको बोला जाता है कि दूसरे के कंधा पर बंदूक रखकर चलाना, कि अगर उधर से कुछ रिटर्न भी आए तो पहले उसी जनता के ऊपर वह रिटर्न भारी पड़े। तो अभी जितने भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार खेला है, इस टैरिफ वार के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वह नुकसान किसका होगा? यह नुकसान मुख्य रूप से अमेरिका के जनता का होगा। अमेरिका के जनता को इस कारण से होगा कि मान के चलिए कि जो प्रोडक्ट उन्हें 100 रुपया में मिल रहा था, अब वही प्रोडक्ट 150 में मिलेगा। अब जब 150 में मिलेगा तो 50 रुपया एक्स्ट्रा भार किसके ऊपर पड़ा? वह तो अमेरिका वासियों के ऊपर पड़ा। वह 50 रुपया किसके पास जाएगा? बेशक अमेरिका के सरकार के पास ही जाएगा, लेकिन एक प्रकार से यह कहीं न कहीं अमेरिका के लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाली विषय है कि आखिर क्यों इस प्रकार के कार्य उनके साथ हो रहा है। जरा आगे की ओर हम सभी लोग बात करने का प्रयास करेंगे तो देख पाएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ इनका इतना गुगली वाली जो कंडीशन चली, जब पाकिस्तान के जो आरसी मुनीर जो वहां के ISI का चीफ है, जब वह अमेरिका के अंदर आता है तो उसे डोनाल्ड ट्रंप से भी मीटिंग करवाते हैं। यह सिलसिला स्टार्ट होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन सिंदूर करने के पीछे आप सभी लोग कारण जानते होंगे कि जो पहलगांव के अंदर अटैक किया गया था पाकिस्तान के वहां के आतंकवादियों के द्वारा, तो वही आतंकवादी के जवाब देने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। जब ऑपरेशन सिंदूर यहाँ से चलाया गया तो पाकिस्तान के सबसे पहले जो आसिम मुनीर ISI के चीफ हैं वह अमेरिका के जाके पैरों में गिर गए कि आपको जो चाहिए हमारे देश से हम देने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले हमको भारत से बचाइए। अब भारत से बचाने के पीछे मुख्य रूप से कारण यही था कि उनको अब भारत से इतना ज्यादा डर लगने लगा कि भारत अगर हर देश, जहां तक उन्होंने नहीं सोचा था, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, जब पंजाब के ऊपर पाकिस्तानी पंजाब के ऊपर जब बम गिरने लगा तो उनके सेना को समझ में आ गया कि अब हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के DG जो हैं वह भारत के पास फोन करते हैं पाकिस्तान के और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि अब वार को रोक दिया जाए, हमारी ओर से भी गलती हो गया है। ठीक है, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया जाता है। अब इसी को क्रेडिट ले लेने के लिए जब भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे कनाडा या यूरोपियन कंट्री में ही, उस समय कोई समिट चल रही थी, तो आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके बुलाया था कि आप यहां तक तो आए हुए ही हैं, आप हमारे देश में भी आ जाइए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री काम का बात बताकर वहां से चुपचाप निकल गए थे। वह बुलाना क्यों चाहते थे? बुलाना चाहते थे कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर को आमने सामने बस बैठाकर फोटो खिंचवा दिया जाए, और उसके बाद वह क्या बोल रहे थे कि हम जो कश्मीर का मुद्दा है वह सुलझवा दिए। लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया गया कि भारत और जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें किसी भी प्रकार का कोई तीसरा देश का इंटरफेयर नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों करना चाहते थे? यह करने का पीछे का मेन मकसद ही यही था कि उनको सोच रहे थे कि अगर इस प्रकार के हम कार्य करके दुनिया को दिखाएंगे तो हमको नोबेल पीस प्राइज लेने में बहुत ही आसानी होगी। और ये सारे सिचुएशन को डोनाल्ड ट्रंप बैठाना चाहते थे, लेकिन भारत को मना करने से उनको बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ और भारत के साथ उनका रिलेशन बिगड़ते चला गया। और आपको याद होगा कि उसी दिन रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया, उसके बाद 25% का और टैरिफ लगाया गया। अब उसको सैंक्शन के रूप में अमेरिका यूज करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान से उसके बदले में क्या लिया? पाकिस्तान से सबसे पहले उसके बदले में जो क्रिप्टो करेंसी है वह लगवाया, जो कि जूनियर डोनाल्ड ट्रंप, आज के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बेटे का वह कंपनी है, उसके अंदर हमें पाकिस्तान से जो भी करप्शन का पैसा है वह भर भर के लगवाया। उसके बाद और जो रोकोडोक जो माइंस हैं उसके बारे में बात किया। एक्चुअली अब बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका अपने जो परिवार वालों की एक कंपनी है उनके साथ वह अंदर जाना चाहता है और वहां से गोल्ड, कॉपर, ये सारी चीज निकालना चाहता है। अब आगे की बारे में हम लोग जब बात करने की प्रयास करेंगे तो अब ये सारी सिचुएशन जब बनने लगी तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप
आज खुद इस कटघरे में फंसने जा रहे हैं। जो जनता उनको विश्वास के साथ लेकर आई थी, अब उसी जनता के ऊपर उनका मार पड़ने लगा है। जैक सुलिवन ने जब पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी बढ़ी तो उन्होंने स्पष्ट तरीका से बता दिया कि जो आज के जो अमेरिका का जो एक ब्रांड हुआ करता था, अब वह ब्रांड मुख्य रूप से ब्रांड नहीं होकर वह एक टॉयलेट बन चुका है। अब तो फॉक्स न्यूज वाले भी आपस में इंटरव्यू में ये सारी बातें कर रहे हैं। Itself accumulated of this. How much? Yeah, for World Liberty Financial, and the Wall Street Journal says it's $5 billion. So this coin, WLFI, is currently the 33rd largest coin by market cap, about $6 billion worth, according to CoinGecko. The family holds about a quarter of the tokens out there. They can't sell them, but now that the token has launched on the public markets, we have a valuation for it. The Wall Street Journal says this token is the family's most valuable asset, exceeding their property portfolio. But they can't sell those tokens. They can't do it. No. Not yet. Not yet. Correct. Not yet. My goodness me. $5 billion? Eye-popping numbers. He is the crypto president, the first one ever. A lot of crypto-friendly legislation, regulation. What it amounts to is it's crypto-friendly legislation coming from the President of the United States, who is in turn cashing in on the crypto phase. Personally, his family. Conflict of interest. They say no, but that's how it appears. That's right. आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।